নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। সরাইকেলা খারসাওয়া জেলার আদিত্যপুর থানার অন্তর্গত শার্লি বস্তির এক ২৬ বছর বয়সী বিবাহিত ব্যক্তি বাড়িতে পাখার সাথে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যুবকের নাম দেবাশিস পাল, যিনি ফার্মাসির ছাত্র ছিলেন। মৃতক আরএমপি ডাক্তার শুভরঞ্জন পালের একমাত্র ছেলে। ৬ মাস আগে ঘাটশিলার এক যুবতীর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। ঘটনার সময় তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন। জানানো হচ্ছে যে রবিবার পরিবারের সকল সদস্য পিকনিকে যান, যার মধ্যে মৃতকও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিল। তারপরে রাতে বন্ধুদের সাথে দেখা করার কথা বলে বাড়ি থেকে সে চলে যায় এবং গভীর রাতে ফিরে আসে। সকালে যখন তিনি দীর্ঘক্ষণ পরেও ঘুম থেকে না উঠলে পরিবারের সদস্যরা জোর করে বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশের পরে তাকে ফ্যানের সাথে ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার খবর পেয়ে আদিত্যপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ऐसा सीढ़ी से किसी ने, ये परफेक्टली हम नहीं बता पा रहे किसने, किसी ने देखा और मतलब नहीं खोल रहा, तब देखा कि वो फंदे से झुला हुआ था। उसके बाद खबर किया, बगल में तो भाई है, बड़े पिताजी का लड़का, समय में दौड़ते हुए आए हम, दरवाजे को तोड़ के दरवाजा तोड़ के मतलब उसको फंदे से उतारे हैं। तो सीलिंग में लगाया? हाँ, पंखा में लगाया था। क्या कारण लग रहा है आप लोग? कोई मानसिक दबाव था? ऐसा कुछ नहीं, कल जो था सिचुएशन ऐसा था कि फैमिली प्रोग्राम में पिकनिक में गए हुए थे और वो डेली की तरह खुश था, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी पिकनिक में गए? हाँ, ये भी था। अच्छा। डेली की तरह खुश था। घर लौटने के बाद किसी फ्रेंड से मिलने के बाद कहते हुए निकला हुआ था। काफी देर रात तक वो लौटा है। अच्छा, ये हम श्योरली नहीं बता पा रहे हैं। लेटा हुआ है, बाकी आगे की कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सरायकेला, हाँ, सरायकेला। জামশেদপুরের বাগবেড়া গিট্টি ঝুপড়ি হাট সাবস্টেশনের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন সঞ্জীব সর্দার। সরকারের ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে রাজ্য সরকার দ্বারা গত ২৯শে ডিসেম্বর বেশ কিছু প্রকল্পের উপহার রাজ্যবাসীদের দেওয়া হয়েছে। এই সময় বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের অনলাইনে উদ্বোধন করা হয়, যেখানে সোমবার পোটকা বিধানসভা এলাকার বিধায়ক সঞ্জীব সর্দার এই উদ্বোধন করেন। সেই সময় গ্রামাঞ্চলের মাঝি বাবা এবং গ্রাম প্রধান উপস্থিত ছিলেন, যেখানে বিধায়ক সঞ্জীব সর্দার ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেছেন। विगत दिन हमारे हेमंत सरकार का 1 साल वर्षगांठ हो जाने के बाद आज 29 तारीख को इस सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। तो आज हम लोग सारे गांव के माझी बाबा लोग, हमारे क्षेत्र की जनता, पार्टी की कार्यकर्ता साथ यहाँ पहुँच के आज विधिवत रूप से आज इस योजना का निरीक्षण करते हुए आज शुभारंभ हम लोग किए कि ताकि इस क्षेत्र में जो कि बागबड़ा गिद्धी झोपड़ी और बागबड़ा कॉलोनी और सारे बड़दा घाट और सरायकेला कुछ क्षेत्र को इस सब स्टेशन से बिजली मुहैया कराया जाएगा। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত নতুন শিক্ষার্থী বৃত্তির বাজেটের বিজেপিতে অফিসিয়ালি জাতীয় মোর্চা প্রশংসা করেছে। একটি আলাপকালে বিজেপি কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ১১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং গত ২৩শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বৃদ্ধি করে ৬,০০০ কোটি টাকা করে দিয়েছে। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आभार प्रकट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है और इस तरह से कई फैसला इन्होंने लिया है। जैसे कि आप देखे हुए कांग्रेस की सरकार ने आप गांव से किनारे हरियाणों के लिए हरिजन आवास का व्यवस्था किया जाता था, जो उसमें आप ठीक से न घुस सकते थे, न निकल सकते थे और न वहाँ कोई रह सकता था। लेकिन हमारी सरकार और मोदी जी की सोच जो दलितों के लिए है, यह बहुत सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव के कारण वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में यह आदेश या छात्रवृत्ति जो 6,000 करोड़ रुपया किया गया है, यह एक पत्थर का लकीर मील का पत्थर साबित होगा। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ও সরাইকেলার বিধায়ক চম্পাই সোরেন সরাইকেলা জেলার গামারিয়া উপরবেড়া পৌঁছান, যেখানে শ্রমিক নেতা ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী স্বর্গীয় রতিলাল মাহাতোর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি স্বর্গীয় মাহাতোর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। মন্ত্রী চম্পাই সোরেন ঝাড়খণ্ড সরকারকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সাথে যুক্ত শহীদদের পরিবারগুলির সন্ধান করে এবং তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেছেন। जब बंगाल से बिहार अलग हो गया 1935 उसका बाद फिर आया उड़ीसा अपना अलग
तो उसी समय ये बात भी उठा कि हम क्यों यहाँ आए, हम भी अपना बृहद झारखंड का लेके आंदोलन शुरू हुआ। গত রাতে জামশেদপুরের টেলকো থানা অন্তর্গত জেমকো চকস্থিত অনুরাধা জেনারেল স্টোরের দোকানে চোরেরা দোকানের শাটার ভেঙে দোকানে রাখা বেশ কয়েক হাজার টাকা নগদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে দোকানের মালিক যখন দোকানটি খুলতে পৌঁছান তখন শাটারের লকটি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। ভেতরে ঢোকার পর এক নগদ কাউন্টার থেকে প্রায় 25,000 টাকা নগদ এবং দোকানের বেশ কিছু জিনিস উধাও পাওয়া যায়। দোকানের মালিক টেলকো থানায় এই বিষয়ে সূচনা দিয়েছেন। বর্তমানে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। अभी तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन लग रहा है कि 10 से 15 हज़ार रुपया कैश हम लोग को छोड़ के जाते हैं। जो पापा जी रात में माने पापा जी सुबह लेट से आते हैं, इसी कारण कुछ कैश हम लोग गले में छोड़ देते हैं और वही कैश लगता है वो निकाल के लेके गया है और कुछ सामान भी लग रहा है गायब हुआ है। জামশেদপুরের গোলমুড়ি থানার অন্তর্গত কেবল টাউনের কাছে সোমবার সকালে ডিউটির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া দুইজন যুবককে একটি দ্রুত গতিতে আসা কার সাংঘাতিকভাবে ধাক্কা মারে, যার কারণে ঘটনাস্থলে একজন যুবকের মৃত্যু হয় এবং অন্যজনকে গুরুতর অবস্থায় এমজিএম হাসপাতালে আনা হয়। নিহতের নাম সরফরাজ খান বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তির নাম সুরজ কুমার। মামলার সূচনা গোলমুড়ি থানায় দেওয়া হয়েছে, যেখানে মৃতদেহের পোস্টমর্টমের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিজনেরা নিহতের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং গাড়ির চালককেও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। जानकारी हम लोग को यही मिला है कि ये दोनों लड़के जो थे सरफराज के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और ये लड़के दोनों चीज़ों में काम कर रहे थे। वहीं से काम ड्यूटी नाइट ड्यूटी था, रात में ड्यूटी के दौरान आ रहे थे केबल कंपनी के पास जो है। कहाँ पे हुआ है? केबल कंपनी जो है अच्छा क्लब के अज्ञात वाहन से बता रहा है। और पीछे जो लड़का सूरज कुमार था उसका हेड इंजरी है, उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए गया है। उन्हीं के आधार पे हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसका एक्सरे हो जाएगा, उसी के आधार पे बयान करके हम लोग केस करेंगे। जो भी इनका प्रक्रिया उसको करेंगे और जो कार मार के भागा है उस कार को सीसीटीवी कैमरे में इतना बजे उसको पकड़े, उसका पर भी एफआईआर लॉन्च हो। চান্ডিল ব্লকের NH 33 রাহাড্ডি গ্রামে কংগ্রেসীদের দ্বারা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী জয়পাল সিং মুন্ডার 118তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে, যার মধ্যে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সহ জেলা পরিষদ সদস্য মাধব সিং মানকি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিরসা মুন্ডার মূর্তির উপর মাল্যার্পণ করে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী মারাং গোমকে জয়পাল সিং মুন্ডার ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। प्रयास से हमारे 1 जनवरी खरसों में जो उड़ीसा से बिहार जो हमारा भूखंड को लाने का इन्हीं का प्रोग्राम रहा, इसलिए हमारे परांगोम के जयपाल सिंह मुंडा हमारे झारखंड और हमारे भारतवर्ष में सर्वप्रथम आज़ादी भारत में इनका नेतृत्व में ही हमारे कुप्रशासन ने हजारों की आदिवासियों का गोलीकांड से भून दिया, जिनका अभी तक सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। 9 মাস পর জামশেদপুরের ইংরেজি স্কুলগুলি আবার ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়গুলি খোলা হয়েছে। এখানে সোমবার দীর্ঘ অন্তরালের পরে স্কুলে পৌঁছানো শিক্ষার্থীদের আনন্দিত হতে দেখা গেছে। একই সাথে স্কুলে কোভিড-19 সম্পর্কিত সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে করোনা মহামারীর কারণে সারা দেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 21শে মার্চ 2019 থেকে বন্ধ ছিল। বর্তমানে ধীরে ধীরে জনজীবন আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। একই সাথে ভারতে করোনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডেও সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। রিকভারি রেটে উন্নতি হয়েছে এবং মৃত্যুর হারও অনেক কম রেকর্ড করা হচ্ছে। এদিকে করোনা ভ্যাকসিন আসার পরে লোকেরা স্বস্তি পেয়েছে। हर प्रोटोकॉल अगर होगा तो प्रोटोकॉल के साथ हम लोग फिर वापस आएंगे। अगर कुछ चीज़ थ्योरी हो रहा है अभी और कुछ चीज़ ऑनलाइन अभी हो रहा है और अभी कुछ ऑफलाइन भी हो रहा है। जैसा हम लोग शनिवार से जो हम लोग को जब से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिला परमिशन, तब से हम लोगों ने वो सारा गाइडलाइन फॉलो किया है। आज बच्चों को पेरेंट्स से डिक्लेरेशन फॉर्म लेने के बाद ही एंट्री मिला है और बिना मास्क के बिना ग्लव्स के हमारा हर फ्लोर
होते ही जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ सैनिटाइजर स्टैंड रखा गया है। পূর্ব সিংভূম জেলার জেএমএম কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি লাভকুমার সর্দার এবং সহ সভাপতি শেখ সেলিম শাহজাদ বিজেপি সরকারকে ক্রমাগত কটাক্ষ করছে। এদিকে আজ সংবাদদাতা সম্মেলনে তারা বলেন যে কৃষি আইন বাতিলের দাবি সিন্ধু সীমান্তে অব্যাহত রয়েছে, কারণ এই আইন কৃষকদের হিতে নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব, কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही उद्देश्य है, जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर सिद्धू बॉर्डर में लगातार जान गंवा रहे हैं, ये केंद्र सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और केंद्र का किसी मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज देश का किसान सड़कों पर है। ये लड़ाई देश का किसान का नहीं है, एक जनता का लड़ाई है। आज जिस तरीके से ये अंबानी अडानी का गुलामी कर रही है, ये सरकार को तत्काल इस कानून को रद्द करना चाहिए और जल्द से जल्द इस किसान को मुआवजा, जो भी किसान वहाँ मरा है उसको सभी किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। भाजपा सरकार बिजनेस करती है, वो किसानों को भी एक बिजनेस के तौर पर देखती है। पूरे भारतवर्ष के लोगों को वो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस करके यूज करती है और यूज करके उसको फेंक देती है, यूज एंड थ्रो। इसीलिए जो है भाजपा सरकार नहीं चलेगी। केंद्र सरकार अगर किसान के हित में अगर सोचती है तो उसको आने वाले समय में एक अच्छा बिल लाने की जरूरत है। সরাইকেলা জেলার কাপালিতে ক্রমবর্ধমান শীতের পরিপ্রেক্ষিতে কোলহান যুব কল্যাণ সমিতির ব্যানারে দুস্থ ও অসহায় লোকেদের খাবার ও কম্বল বিতরণ করা হয়। 80 जरूरतमंद लोग आए और उनको कंबल वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हमारे कपाली ओपी प्रभारी विजय कुमार यादव जी रहे और सदस्य संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। নিমডি ব্লকের জামডি পঞ্চায়েতের সিরকায় রবিবার অখিল ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা সারনা সমিতির তিল্লার যৌথ উদ্যোগে মারাঙ্গোমকে বিখ্যাত বিদ্বান, সাংবাদিক এবং একমাত্র হকি খেলোয়াড় জয়পাল সিং মুন্ডার 118তম জয়ন্তীতে মূর্তি উন্মোচন সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। সর্বপ্রথম লায়া অর্থাৎ পুরোহিত সুনীল সিং আদিবাসী মুন্ডা রীতি অনুসারে পূজা করেন। এরপরে সকলে জয়পাল সিং মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। हम लोग का है जो है, हम लोग का एक ऐतिहासिक ये है कि हम लोग उसको सपोर्ट समर्थन में यहाँ मूर्ति बैठा है और जो यहाँ का आवाज़ उठाया है झारखंड अलग प्रांत, तो जयपाल सिंह ने उठाया है। उसका सपना था, हम लोग पूरा कर दिया है। जो ये में हॉकी स्तर में हॉकी खेल में आज भारत को रत्न प्राप्त किए थे, तो इस महान काम के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, हमारे पूजनीय हैं। और आज जो ये निमडी प्रखंड में इनकी जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति के अनावरण की गई है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसे महान नेता के मूर्ति के अनावरण में हमें यही सीख मिलती है कि आज इस समाज में इन्होंने जो काम किया था देश के प्रति, राज्य के प्रति, इन्होंने जो समर्पण भावना में काम किया था, ऐसे ही काम हम इन समाज को लेकर करते रहें ताकि देश और राज्य और समाज उत्कृष्ट ऊंचे दर्जे में जाए और ऊंचा काम करे। और নিমডি ব্লকের জামডি কলা ভবনে জেলা সংযোজক অনুপ কুমার মাহাতো সভাপতিত্বে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থার কোলহান বিভাগীয় স্তরের বৈঠক হয়, যাতে সংগঠনটির সম্প্রসারণের জন্য আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ সংযোজক জয়শঙ্কর পাঠক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারের অবিলম্বে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করার কথা বলেন এবং এই বিষয়ে তাদের সংগঠন সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে। ये तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह जो बैठक हो रहा है और संगठन का विस्तार करने का कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक लेखा जोखा भी लोग अपना दे रहे हैं और साथ में हम लोग आगे कैसे और विस्तार कर सकते हैं पंचायती राज संगठन को, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। पंचायत का जो दिल्ली से पैसा आता है उसमें डायरेक्ट मतलब पंचायत में पहुंचने के लिए ये सिस्टम है। ये पंचायत राज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। ये पंचायत राज, इसको सुदृढ़ करने के लिए उनके नाम पर एक संगठन नया तैयार हुआ। ये संगठन पूरा हम लोग को
देश में विस्तार करना है और पंचायत का जो सशक्तिकरण है इसको पंचायत का पब्लिक तक पहुंचना है। জামশেদপুরে একটি কোম্পানি তার গ্রাহকদের দ্বিগুণ অর্থ উপার্জনের নামে ঠকিয়েছে। জানানো হচ্ছে যে এই কোম্পানির নাম ছিল ওয়েলফেয়ার বিল্ডিং অ্যান্ড স্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড, যা বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত। জামশেদপুরে বিষ্ণুপুর রাম মন্দিরের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের একটি ব্রাঞ্চ অফিসও রয়েছে। কোম্পানির তরফ থেকে একটি প্রকল্প নিয়ে আসা হয়, যার অন্তর্গত কোম্পানি 5 বছরের মধ্যে গ্রাহকদের অর্থ দ্বিগুণ করতে চলেছে এবং কোম্পানি এর জন্য এজেন্টদেরও নিয়োগ করেছে, যারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রাহকদের থেকে কালেকশনের কাজ করে। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় 20 জনেরও বেশি লোকে তাদের জীবনের পুরো জমা পুঁজি কোম্পানির এই স্কিমটিতে বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে এখন কোম্পানি গ্রাহকদের জমা টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করছে। এমনকি কোম্পানির এজেন্টদেরও অন্ধকারে রাখা হয় এবং পুরো কেলেঙ্কারি চালনা করা হয়। সোমবার বিজেপি নেতা বিকাশ সিং এর নেতৃত্বে কোম্পানির এজেন্ট এবং গ্রাহকরা বিষ্ণুপুর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। मैंने 2006 में वेलफेयर में ज्वाइन किया एजेंट के तौर पर और अब तक 21 जनवरी 2020 तक मैंने जमा कराया पैसा। पिछले 15 वर्षों में हमने कंपनी बहुत पैसा जमा कराया और बीच में कंपनी देती भी रही, लेकिन 2013 के बाद से कंपनी ने पेमेंट करना धीरे धीरे कम कर दिया। उस स्थिति में हमने सोचा कि शायद कंपनी परेशानी में है, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट किया जाए, कंपनी को कलेक्शन करके हम लोगों ने पेमेंट संभाला। लेकिन कंपनी का रवैया 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक भी नहीं बदला। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ के ब्रांच इंचार्ज लोग हैं, इन लोग का नज़रिया बदल गया है। कल तक हम लोग से अच्छे से बात करते थे, अब वही बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इन लोग अब भेदभाव करने लगे हैं। ये लोग कहते हैं कि आपका कस्टमर का पेमेंट आप कीजिए, हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे। कितना कलेक्शन करके दिए होंगे? कलेक्शन करके करीब करोड़ों रुपए से ज़्यादा दे चुका हूँ और अभी भी अगर टोटल पेमेंट देखा जाए तो करोड़ रुपए के आसपास ही होगा। अभी जो मैं 20 ठो पेमेंट दिखा रहा हूँ लिस्ट में, वो महत्वपूर्ण पेमेंट है बड़े बड़े लोगों का, जिसका 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख पेमेंट है। और ये सभी लोग हमारे आसपास के पड़ोस के लोग हैं, जो कि हम पर विश्वास करके पैसा दिया कंपनी को। और ये कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है, ये कंपनी दबंगता से पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कंपनी पास पैसा है। जमशेदपुर में इसका करोड़ों का प्रॉपर्टी है। इसका जो ऑफिस है, इसका ऑफिस एरिया अपना खरीदा हुआ है। इसका ज़मीन आपका आदित्यपुर में भी एक ठो है पड़ा हुआ। पैसा मांगने से क्या बोलते हैं? पैसा मांगने से कहती है कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी जब होगा तब देगा। कब होगा इसका कोई अतः ही पता नहीं है। लेकिन लगभग मेरे से 20 लोगों ने संपर्क किया जो कि भुक्तभोगी है। इन लोगों का कहना है कि हमने पूरे जीवन की कमाई वेलफेयर के नाम में लगा दी और इस लालच में कमाया था कि कंपनी ने हमें बताया था कि 5 वर्षों में हम पैसा को दुगना कर देंगे। तो सरकारी जो बैंक है लगभग 10, 8.5, 9 साल में दुगना करते, हम लोग लगा दिया पैसा। लेकिन जब 5 साल पूरा और हम लोग बेटी की शादी करनी थी, अपना इलाज कराना था, तो हम लोगों ने जब कंपनी के एजेंट को पकड़ा और कंपनी की ओर रुख किया तो कंपनी ने सीधा कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, हम नहीं देंगे। तो कहा जाए कि ये लोगों के पास अब भुखमरी के अलावा कोई जरिया नहीं बचता है। लोग अभी उसके कार्यालय में जाके हो हंगामा करने जा रहे थे। हमने कहा कि नहीं, हम लोग कानून के सहारे अपना पैसा निकलवाएंगे। आप पहले थाना में FIR कीजिए, फिर लोग SSP महोदय से मिलेंगे और आगे फिर हम लोग अपना आंदोलन का रुख जारी है। अभी आप